Good morning, student. Today I am going to explain you chapter 5 algebraic expression. So what is algebra? In algebra we use two type of symbol, constants and variables. Variable also called as literals. So constant means which has fixed value. Constant की value fixed होती है. Like example 9 minus 5 0 3 upon 5 minus 7 upon 11 etc. ये एग्जाम्पल है कांस्टेंट के. एंड वेरिएबल विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती. एक्स वाई जेड एल एम एन मीन्स वेरिएबल इज डिनोटेड बाय द लेटर एक्स वाई जेड एल एम. लाइक नाउ पावर ऑफ द वेरिएबल. पावर ऑफ द वेरिएबल. Suppose x into x, write as x power 2. X into x into x, 3 time multiply, so x power 3. Suppose 4 time multiply, x into x into x into x, then x power 4. And if n time multiply, n time multiply n times. So write as x power n, where x is base, n is power or exponent, and x power n is in exponential form. That means ये exponential form में है. x is base and n is power or exponent. Now algebraic expression. What is algebraic expression? Algebraic expression. अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में कौन कौन से 2 टाइप्स के सिंबल यूज होते हैं, एक तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल. आफ्टर दैट पावर ऑफ वेरिएबल. नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन is called algebraic expression. Means collection of variable and constant. Suppose that 4x plus 5. 5 is constant and 4x is variable. So here 2 terms. Another example 9y minus 13. 9y is variable term because y is variable. So 9 into y also variable minus 13. 13 is constant. So what is terms? अब टर्म्स क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. टर्म्स क्या है? द वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. मीन्स प्लस या माइनस से अगर सेपरेट है दैट मीन्स टर्म. फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. सेम ईयर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. सपोज टेक 3 plus 2x square minus 5x cube. So number of terms here 3 because terms are separated by plus और minus sign. plus और minus sign से separate है that means वो term है. Means algebraic expression में यहाँ पर 3 terms है 1, 2 and 3. So on the basis of the terms टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स आप टर्म को देख के उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन.
First, monomial. Monomial means an algebraic expression having only one term. Suppose one term है, example 5x, only single term. Another example minus 3y cube, single term. तो ये क्या है? मोनोमियल. इस algebraic expression को बोलेंगे मोनोमियल. Second is binomial. Binomial means an algebraic expression having two terms. जो अभी लास्ट अभी एग्जाम्पल मैंने लिया था 4x plus 5, that means here two terms है, that means binomial. 9y minus 3, two terms because terms are separated by plus और minus sign. ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस साइन से सेपरेट है, that means वो टर्म है. फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, टू टर्म्स. Here two terms. So algebraic expression is called binomial. Trinomial, that means if number of terms 3. Trinomial. Number of terms 3 हैं, that means 3 plus 2x square minus 5x cube. Number of terms 3 हैं, इसको बोलेंगे trinomial. And multinomial means an algebraic expression having two or more than two terms, means 2 terms, 3 terms, 4 terms and उससे भी ज्यादा 4, 5, तो उसको बोलेंगे मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल में 2 terms भी आएंगी. 4x plus 5 ये भी मल्टीनोमियल है. 3 plus 2x स्क्वायर माइनस 5x क्यू ये भी मल्टीनोमियल है, बट इनका स्पेसिफिक नेम गिवन है कि ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बट इसको एक कॉमनली अगर 2 या मोर देन 2 टर्म्स है तो उसको हम मल्टीनोमियल भी कॉमनली मल्टीनोमियल्स बोल सकते हैं. नाउ अच्छा, कांस्टेंट टर्म. अब यहां पर 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म. एंड दिस वन इज वेरिएबल टर्म. कांस्टेंट टर्म मीन्स जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म. हियर 5 इज कांस्टेंट टर्म, 3 इज कांस्टेंट टर्म, -3 इज कांस्टेंट टर्म एंड हियर 5 इज कांस्टेंट टर्म, 3 इज कांस्टेंट टर्म. और यहां कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है. कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे? जिसमें कि वेरिएबल टर्म नहीं है. दैट मीन्स इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 है वेरिएबल टर्म एंड 1 इज कांस्टेंट टर्म. 2 टर्म है, उसमें से एक वेरिएबल टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म. हियर 2 वेरिएबल टर्म्स एंड 1 इज कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट मीन जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म. नाउ ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? जिसमें हम टर्म्स एंड फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक वन एग्जाम्पल 7xy minus 5 is an algebraic expression. Where there are 2 terms. How many terms? 2 term. One is variable term and one is constant term. Terms, 2 terms. So write algebraic expression 7x minus 5 and here terms. इसके 2 terms हैं and variable factors. इसमें कितने factors हैं? 7, x and y is factors of 7xy term. Factors. -5 ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको आप और फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको आप यहीं तक रखेंगे -5. बट 7xy को आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो इसको लिखेंगे 7x and y. क्लियर? ट्री डायग्राम. टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्री डायग्राम. One more example. Algebraic expression 5x cube minus 7xy square plus 8xy. Here
Number of terms is 3. Terms. First term is 5x cube. Second term is minus 7xy square. And third term is 8xy. अब इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले आपने टर्म्स में डिवाइड किया है. आफ्टर दैट टर्म्स को डिवाइड करेंगे आप फैक्टर्स में. सो 1 इज 5 फैक्टर x क्यूब. x क्यूब मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स. सो x and x. Now second term. First factor is minus 7. Second factor is x. Third factor y. And fourth factor is y. Because y square, that means y into y. 8xy. 8 numerical factor. x and y. ये है फैक्टर्स. तो क्लियर हुआ. ट्री डायग्राम में पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में सेपरेट करेंगे. मीन्स 2 टर्म्स है, यहां पर 2 टर्म्स लिखा. फिर टर्म्स को आगे आप किस में डिवाइड करोगे? फैक्टर्स में. सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल. 5x क्यूब माइनस 7xy स्क्वायर प्लस 8xy. इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया है. सॉरी, टर्म्स में डिवाइड किया है. टर्म्स में डिवाइड करने के बाद फैक्टर्स में डिवाइड किया है. नाउ कोफिशिएंट. सपोज एक टर्म लिया माइनस 5x स्क्वायर y. हियर माइनस 5 इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -5 एंड वेरिएबल कोफिशिएंट. -5 जो है वो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और जो रिमेनिंग है जो वेरिएबल वाला है वो वेरिएबल कोफिशिएंट. वेरिएबल कोफिशिएंट. वेरिएबल कोफिशिएंट इज x स्क्वायर y. ठीक है, ये है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट. सपोज क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 5x. अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ xy. अब आपको कोफिशिएंट ऑफ xy बताना है. कैसे हम बताएंगे? देखो, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा? -5 x एंड y. इसको ये फैक्टराइज किया आपने. अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ xy. xy मीन्स xy को छोड़कर इसके मल्टीपल्स क्या है, मल्टीप्लाई इसके साथ जो है, दैट मीन्स -5x. -5x is coefficient of xy. नाउ सपोज आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ y. y का कोफिशिएंट बताना है. दैट मीन्स y के साथ जिस भी फैक्टर्स हैं इसके साथ वो आपको बताने हैं. दैट मीन्स -5x स्क्वायर. -5x स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ y. सपोज आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स x स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है? दैट मीन्स x स्क्वायर, x इंटू एक्स. सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -5y. -5y ऐसा आपको कोफिशिएंट. बट अगर सपोज में दिया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -5 एंड वेरिएबल कोफिशिएंट x स्क्वायर y. अब जिस भी फैक्टर्स का आपका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, उसके जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो होंगे आपके कोफिशिएंट. नाउ लाइक एंड अनलाइक टर्म. लाइक टर्म्स मीन्स द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल फैक्टर. अभी जस्ट बताया था, ये है
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और ये है आपका वेरिएबल कोफिशिएंट। तो जो फैक्टर्स हैं एक्स एंड वाई, फैक्टर्स अगर सेम है दैट मीन्स ये 3 टर्म्स मैंने राइट किए हैं, 3xy, 6xy एंड -2yx, ये तीनों जो है वो लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? बिकॉज जो उसके फैक्टर्स है एक्स वाई, सेम वेरिएबल फैक्टर्स, एक्स वाई सेम, एक्स वाई एंड वाई एक्स, एक्स वाई एंड वाई एक्स दोनों सेम होते हैं बिकॉज फैक्टर तो यहां पर सेम है, यहां भी फैक्टर एक्स एंड वाई है और इस टर्म्स के लिए भी फैक्टर वाई एंड एक्स है, फैक्टर सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है। एंड अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म में क्या होगा? टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स। यहां एक्स वाई फैक्टर्स हैं एक्स एंड वाई, यहां पर इस टर्म में फैक्टर्स हैं एक्स, एक्स एंड वाई, सो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसलिए ये टर्म लाइक टर्म नहीं है, ये है अनलाइक टर्म, अनलाइक, और ये जो है वो लाइक टर्म। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, इसमें और वेरिएबल एंड कांस्टेंट गिवन है और ऑपरेशन आपको चूज करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट पार्ट, 6 more than thrice a number x. Thrice a number x means 3x and 6 more than. So first part is 3x plus 6. 6 more than thrice a number x. एक वेरिएबल x है जिसका thrice द नंबर और उससे 6 ज्यादा है, so 3x plus 6. Second is 5 times x is subtracted from 13. 13 minus 5x. 5 times x is subtracted from 13. From 13 that means 13 minus 5x. Third, the number x and y both square and added. X square plus y square. Fourth part, the number 7 is added to 3 times the product of p and q. 3 times the product of p and q, 3pq, and 7 is added. So 3pq plus 7. Next part, 3 times of x is subtracted from the product of x with itself. x का x के साथ multiply, that means x square. And 3 times of x is subtracted, so 3x. Sixth, sum of the number m and n is subtracted from their product. mn and sum is subtracted, so m plus n. First question. Second question, a taxi charges ₹9 per kilometer. मीन्स 1 किलोमीटर का चार्ज करता है वो, टैक्सी का चार्जेस हैं, चार्जेस इज 9 रुपीज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 9 रुपीज लगता है। एंड फिक्स्ड चार्जेस, जैसे स्टार्टिंग का फिक्स्ड चार्ज होता है, फिक्स्ड चार्जेस इज ₹50। मीन्स अगर आप टैक्सी में बैठे हो तो 50 रुपीज तो देना ही देना है, फिक्स्ड चार्ज है, बट उसके बाद 1 किलोमीटर का 9 रुपीज पे करना है। इफ द टैक्सी इज हायर्ड फॉर x किलोमीटर, और कितने किलोमीटर के लिए हायर किया है टैक्सी को? हायर्ड फॉर x किलोमीटर। सो राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द सिचुएशन। इसके लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। दैट मीन्स कितने किलोमीटर गए? x किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का 9 रुपीज लगता है, दैट मीन्स फॉर x किलोमीटर 9x एंड 50 रुपीज फिक्स्ड चार्ज है, ये तो देना ही देना है। सो 9x प्लस 50 रुपीज, इसको अब रुपीज में शो करना है, यहां पर रुपीज।
rupees 9x plus 50. Third question, write down the algebraic expression whose terms are. टर्म्स गिवन है सेपरेटेड बाय कॉमा, 3 टर्म्स गिवन है, इसके लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है. वेरी सिंपल, 5a माइनस 3b एंड c, 3 टर्म्स गिवन है. अब आपको इसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है. दैट मीन्स 5a माइनस 3b प्लस c is algebraic expression for given 3 terms. Second, x square minus 5x 6. So for this 3 terms, algebraic expression is x square minus 5x plus 6. Same as third part. Fourth question, write all the terms of the algebraic expression. जो थर्ड क्वेश्चन है इसका जस्ट अपोजिट है, मीन्स आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको टर्म्स लिखनी है. 3 माइनस 7x, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें अब आपको टर्म्स लिखनी है. सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड सेकेंड टर्म इज कॉमा, सेकेंड टर्म इज 7x, 2 टर्म्स. सेकेंड पार्ट, 2 minus 5a plus 3 upon 2b. Algebraic expression given, you have to write the terms. So 2 first term, comma, minus 5a second term, comma, 3 upon 2b third term. Is it clear? Fifth question, identify the terms and their factor in the algebraic expression given below. आपको टर्म्स बतानी है और उसके फैक्टर्स बताने हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज माइनस 4x प्लस 5y. इसको हम एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ऊपर लिखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसके बाद इसके कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, माइनस 4x, अच्छा इसके नीचे लिख रही हूं, सेकेंड टर्म है 5y. 2 टर्म्स हैं 4x एंड 5y. तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ऊपर यहां लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड फैक्टर्स. 2 टर्म्स हैं माइनस 4x और सेकेंड टर्म है 5y. अब इसके फैक्टर लिखना है. फर्स्ट टर्म के फैक्टर कौन से होंगे? -4, x, 2 फैक्टर्स. सेकेंड टर्म 5y, 5, y, 2 फैक्टर्स. सेकेंड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. फिर टर्म्स, आपको टर्म्स लिखनी है. xy फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 2x स्क्वायर y स्क्वायर. अब इसके आगे आपको फैक्टर्स लिखने हैं. xy फैक्टर x, y, 2 फैक्टर्स. एंड सेकेंड टर्म 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2x, x, y, x square, that means x into x, so factor x and x. Y square, y and y, 2 factors. Same as third part. Sixth question बेटा नेक्स्ट क्लास में 6 क्वेश्चन से आप कंटिन्यू करेंगे हम. थैंक यू.